So the final part of the chapter, Pythagoras theorem, that is triangles का final part. You all know what is Pythagoras theorem, right? In Pythagoras theorem, like when you apply Pythagoras theorem to any right angle triangle, the relationship says that the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the base and the height. ठीक है, अब ये प्रूव करना है. सो ये प्रूव करने के दो मेथड्स है और एक मेथड अपना द मेथड विच वी आर गोइंग टू यूज इज सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी से ये प्रूव होता है, इसलिए सिमिलैरिटी चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम. ऑल्दो आगे मीन्स व्हेन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू the questions, you do not use similarity. There is no use of similarity in while solving the questions. Simply you use Pythagoras theorem and solve the questions. ठीक है. So first thing what we are going to do is we are going to prove the theorem. That is what we are going to do. We are going to prove the Pythagoras theorem. Okay. Suppose एक triangle है. A, B, C, which is right angled at B. Given, please note whatever I am writing with me, okay? Given in triangle ABC, angle ABC equals 90 degree. To prove AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square हमें प्रूव करना है. इसके लिए हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC. मतलब B से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो जिसको नाम दे दो BD. ठीक है, अब प्रूफ. Now I would like to remind you of something which I taught you last week. Last week means last Thursday. I discussed this with you, all of you. At the end of the lecture, if you remember, I had taken this kind of right angle triangle and I had dropped a perpendicular from the right angle to the hypotenuse, and I told you one thing, that ये जो दो छोटे ट्राइंगल्स है ना, ये आपस में सिमिलर है और ये दोनों छोटे ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल से भी सिमिलर. डू यू रिमेंबर दैट? डू यू रिमेंबर? आई हैड टोल्ड यू, यू वर नॉट देयर इन द लास्ट लेक्चर. यू रिमेंबर? ये दोनों छोटे ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल से भी सिमिलर है और आपस में एक दूसरे से भी सिमिलर. डू यू ऑल रिमेंबर गाइस? Okay, okay. If you remember, this is going to help you because I'm not going to prove them similar. Remember that. I'm just going to write the names कि ये triangle इससे similar. But before I do that, I would like to do one formality which I had done that time also, which is naming the angles. Suppose if I take this angle as x, can you tell me how much will this angle be? Right? 90 minus x. Acha. Suppose this is, acha, this is 90, that side also will be 90, this is x. How much will this be? Acha. This is 90 minus x. How much will this be? ये मैंने बताया था तुम्हें, ये स्पेसिफिकली ये एग्जांपल और रेफरेंस दिया था बिकॉज आई न्यू दैट पाइथागोरस थ्योरम में वापस हमको ये यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट? नाउ सी, आई एम गोइंग टू राइट टू स्टेटमेंट्स जिसका प्रूफ मैं नहीं लिखूंगा बट दो स्टेटमेंट लिखूंगा एंड यू विल एग्री विथ मी. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्राइंगल ABD is similar to triangle ACB. ट्राइंगल ABD ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल
पूरे ट्राइंगल एबीसी से सिमिलर है। मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है, टू टू शो दैट विच पार्ट इज करस्पॉन्डिंग टू विच पार्ट। करस्पॉन्डेंस दिखाने के लिए मुझे नाम ठीक से लिखना जरूरी है, ठीक है। बाय विच टेस्ट आर दे सिमिलर? बाय ए। ठीक है ना, यू एग्री विथ मी ऑन दिस? अच्छा, और एक स्टेटमेंट देखो ध्यान से, ट्राइंगल डी बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। डीबीसी और बीएसी सिमिलर है। डीबीसी नीचे वाला छोटा ट्राइंगल है और बीएसी बड़ा ट्राइंगल है, दे आर ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, बाय ए सिमिलैरिटी। यहां से मैं मेरा प्रूफ शुरू कर रहा हूं, ठीक है, यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। अच्छा, अब देखो, आई नो दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो कैन आई से दैट ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी is equal to AD upon AB. Can I say AB upon AC is equal to AD upon AB? What is the reason of this? Why can I say this? CPST, corresponding parts of similar triangle. तुम बोलोगे सर और एक रेशियो होता है, तीन साइड्स के तीन रेशियो, आपने यही दो क्यों लिखे? और एक रेशियो होता है, मैंने जानबूझ के वो थर्ड रेशियो को इग्नोर किया क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। तो मैंने दो रेशियो सिलेक्ट कैसे किए, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके पीछे एक सीक्रेट है। उससे पहले मैं दूसरे ट्राइंगल के ऐसे सिमिलर पार्ट्स निकालता हूँ। द वन हु इज स्मार्ट ना विल अंडरस्टैंड कि मैंने ये दो रेशियो ही क्यों लिखे। जस्ट सी दिस, दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। DC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। सही है? DC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। क्यों? रीजन क्या है? CPST। अगर तुम्हारे लिए ये डिफिकल्ट है, अगर तुम्हारे लिए ये डिफिकल्ट है, मैं तीनों साइड्स लिखता हूँ, ठीक है। द थर्ड साइड आई विल राइट ओवर हियर, ठीक है। द थर्ड साइड मैंने ए बी लिख दिया, ए डी लिख दिया, बी डी अपॉन सी बी, ठीक है। थर्ड साइड भी लिख दी, चलो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है इसमें, मैं कैसे सिलेक्ट करना है ये बता दूंगा। यहाँ भी मैं थर्ड साइड लिख देता हूँ, सो दैट यू कैन नॉट से कि नहीं ये तो कैसे पता चलेगा हमको। आई विल टेल यू, डी बी अपॉन बी ए, ठीक है, सी पी एस टी। अब तो तीनों साइड लिख दी, ठीक है। सी पी एस टी, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये थियरम प्रूव कर रहा हूं। ऑल्दो योर एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन MCQs, but if you know how to prove the theorem, you have an extra edge. That means your logic is sharpened to solve all those kind of questions which are highly tricky. तुम आराम से कर सकते हो बिकॉज तुम्हें पता है ये आया कहां से, ठीक है। अब देखो, नाउ सी which two ratios I'm going to select. Out of these three ratios, tell me two ratios in which one of the numerator and the other ratio's denominator are equal to each other. ऐसे कौन से रेशियोज है जिसमें एक का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर इक्वल है? तीनों में से, ये तीनों में से। सो यू मीन, तो इसमें तुम्हें समझ में आ रहा है कि there is a relationship over here which is going on. You see that? तो इसलिए ये दोनों काम के हैं। अभी इससे भी आगे मैं लेके जाता हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दे आर यूजफुल, हाउ दे आर यूजफुल। अच्छा, क्या मैं इससे ये बोल सकता हूँ, कैन आई से दैट ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी टाइम्स ए डी? कैन आई से दैट? कैन आई से क्रॉस मल्टीप्लाई करके? अच्छा, कैन आई से फ्रॉम हियर दैट बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी सी टाइम्स ए सी? Can I name it equation number 1 and this one equation number 2?
एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, अगर ये दोनों को ऐड करूंगा मुझे क्या मिलेगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी इंटू ए सी, बीच में प्लस की साइन, करेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना प्रॉब्लम। सो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अच्छा ये दोनों में प्लीज नोट हियर कि ए सी कॉमन है दोनों टर्म में, ए सी कॉमन है, उसको मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी। डायग्राम में देख के जरा बताओ ए डी प्लस डी सी कितना होता है, एग्री? ए डी प्लस डी सी इज ए सी, और अच्छा तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी टाइम्स ए सी, सो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। यही तो प्रूव करना था हमको, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज हाउ इट हैज बीन प्रूव्ड। In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the other two sides. This is it. With the help of similarity. So it makes sense कि chapter में Pythagoras theorem क्यों. Now remember that there are numerous other proofs. I have put the video also already. The title of the video says Pythagoras theorem and more. जिसमें ये थ्योरम मैंने प्रूव की है, इसकी कन्वर्स प्रूव की है, और 3-4 प्रूफ लिखे हैं मैंने। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो सबको साइड में रखते हैं। तुम्हें ये समझ में आया क्या? बस इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसकी टेक्निक समझ लो, because that video you can see n number of times and you can understand, but this live interaction you are doing it in live lecture, that is more important. So I don't want to repeat what I have already said, I want to do something new with you. तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन, असॉर्टेड क्वेश्चन निकाले हैं, वो मैं तुम्हारे साथ सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है ना? ये समझ में आया सबको प्रूफ? ठीक है, ऑल्दो proof will not be asked to you according to the new paper pattern, but in case in your school exams, if this chapter is coming and if they ask you, you can definitely write, no problem. In fact, you can solve any question once you understand the concept. Okay, let's go ahead. So there is Pythagoras theorem, the second one is converse of Pythagoras theorem. Then there are some important results based upon Pythagoras theorem, which are given over here, proved over here. I have explained them in my videos. Okay, so I'm not going through any of them. And we will be doing similar questions in the exercise also. Okay, so directly we'll start with the exercise. Okay, look here. The question says that a man goes 150 meter due east. Due east means towards east. Okay, and then 200 meter due north. Find his distance from the starting place. ठीक है, सो इसमें हम लोग ड्रॉ कर लेंगे डायरेक्शंस. ओके, suppose this is north, this is east, this is south and this is west. हमेशा ये डायरेक्शन याद रखने के लिए ना मैं इंडिया का मैप इमेजिन करता हूँ. ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है. इंडिया के मैप से ही याद रहा है मुझे, नहीं तो मुझे कभी याद नहीं रहता, हमेशा गड़बड़ होती है. अच्छा, a man goes 150 meter due east. अब always remember, if you want to solve these kind of questions easily, you have to start from the origin. ये जो origin है ना, वहीं से शुरू करो.
यहां से ईस्ट की तरफ 150 मीटर, मतलब आई विल बी ट्रैवर्सिंग अ डिस्टेंस लाइक दिस। उप्स, क्या हो गया भाई? It's behaving in such a weird way. I don't know why. See? Okay. यहाँ से this man goes 200 meter due north. मतलब it takes a turn and goes 200 meter due north. This is 150 meter. This is 200 meter. Okay. How far is he from the starting position? Suppose this is position A, this is position B. How far is he from O now? Because O is the starting position. Sorry. Okay, I don't want the answers. Okay, anyone, I'm not interested in any answers. So please, if I ask you, you answer. If I'm not asking, do not speak in between. I have OA, I have AB, I have to find OB. Now understand, when he takes a turn, while he was going east, then he took turn and going towards north, he is actually making an angle of 90 degree. So this is a right angle triangle, and you can simply apply Pythagoras theorem to find OB. Like OA square plus AB square is equal to OB square, and you can find OB. Please do it and tell me the answer. When you are done, please let me know in the chat box, or you can just raise your hand. Do not tell, do not prompt the answer. ठीक है? जिनको समझ में आया अभी प्लीज फाइंड आउट, जिनको ऑलरेडी आ गया कोई बात नहीं, वेट करो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सॉल्व इट प्रॉपर्ली, डू नॉट मेक एनी सिली मिस्टेक्स। जिनके कैम ऑफ है प्लीज ऑन करिए। सोहम, अदिति, प्लीज ऑन योर कैम। शिखा, जानवी, अथर्व, प्लीज ऑन योर कैम। ओके, गॉट इट। हाउ मच यू गॉट? 250। करो, आराम से करो, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। यू शुड गेट द करेक्ट आंसर, दैट इज इंपॉर्टेंट। According to most of the students, the correct answer is 250 meter. So see to it that you get it. So this was a very simple one. सीधा सीधा एप्लीकेशन था पाइथागोरस थ्योरम का। ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हें पूछेंगे, ठीक है? प्रूफ वाले क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, डोंट वरी। Okay, great. I think most of you will have got the answer, so we are going ahead. Same diagram, see, they have drawn same diagram, same triangles, same Pythagoras theorem they have applied and got the answer. This is the method. Okay, next question. A ladder is placed in such a way that its foot is at a distance of 5 meter from the wall and its top reaches the window 12 meter above the ground. Find the length of the ladder. अब ये थोड़ा इमेजिनेटिव है, क्वेश्चन इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम इसका डायग्राम बना सकते हो ठीक से और आंसर निकाल सकते हो। सो पहली बात तो एक देयर इज अ वॉल, ठीक है, एंड देन देयर इज अ लेवल ग्राउंड, और एक लैडर रखी है इस वॉल के ऊपर ऐसे स्लैंट। लैडर हमेशा स्लैंट होती है। इफ यू वांट टू इमेजिन, दिस इज द लैडर लाइक दिस,
ठीक है, ये लैडर। अब क्या बोला है देखो ध्यान से, द फुट ऑफ द लैडर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब ये 5 मीटर है। You can name the ladder as AB and this point as O. So OB 5 meter and the window is 12 meter above the ground. So AO is 12 meter. You have to find the length of the ladder. Always remember any wall makes an angle of 90 degree with the ground. तभी वो खड़ी रह सकती है wall. वैसे लीनिंग टावर ऑफ पिसा भी है बट हर जगह तो नहीं बन सकता। खारगर में तो नहीं दिखेगा तुम्हें लीनिंग टावर ऑफ पिसा। So we have to by default take that the angle between the wall and the ground is 90 degree and then apply Pythagoras theorem, find the value of AB. Many of you have already got the answer, 13 meter. ठीक है, सो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, but you have to draw the diagram to understand it better. Okay, let's go to the next question. Okay, the next question says that two poles of height 6 meter and 11 meters stand vertically on a playground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. This is an important question because it involves more than one right angle triangle in one figure. So पहले तो फिगर बनाओ। एक पोल है 6 मीटर हाइट का और एक पोल है ऑलमोस्ट डबल, दैट इज 11 मीटर हाइट, और ये दोनों एक लेवल प्ले ग्राउंड के ऊपर है, और ये दोनों के जो फीट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर। दिस इज 6 मीटर टॉल पोल, दिस इज 11 मीटर। ठीक है, we know that pole or any such structure, tower, wall always makes an angle of 90 degree with the base. ठीक है, I just name the poles AB and CD. Okay, now distance between their feet is given. We have to find the distance between their tops. So the distance between their tops, I just join the lines over here like this. AC. We have to find AC. Can anyone tell me a valid construction to find AC? A valid construction to find AC? No. Draw a line which is perpendicular to CD from A. A से एक perpendicular ड्रॉप करो CD के ऊपर, मैं बताता हूं कैसे। Yes, you are right. So this line will go straight and meet CD over here like this. ठीक है, now see what we have done is we have dropped a perpendicular here, so this angle has to be 90 degree. This is E, point E. ठीक है, so you have to write a statement like this: construct AE perpendicular to CD. ठीक है, now AEDB is a rectangle. Why is it a rectangle? Because three angles are already 90 degree, the fourth has to be 90 degree. If all angles are 90 degree, then it is a rectangle.
AEDB is a rectangle. Achha. If it is a rectangle, then we can say that AB is equal to ED is equal to 6 meter. Means this is 6 meter ED. The whole thing is 11 meter. So the upper part is how much? 5 meter. Okay. Therefore, you can say that CE is equal to CD minus ED, which is 11 minus 6, which is 5 meter. Also, AE is equal to BD, which is equal to 12 meter. So this is 12 meter. AE is equal to 12 meter. ठीक है. What is the reason behind this? Opposite sides of rectangle are equal. ये जो हमने लिखा ना अभी, AE is equal to BD, AB is equal to ED, opposite sides of rectangle. Reason लिख देना. ठीक है. Now consider triangle ACE. Do you see triangle ACE? In triangle ACE, AE is equal to 12 meter, CE is equal to 5 meter, and AC I do not know. I don't know what is AC. So I can find with the help of Pythagoras theorem. Please find AC with the help of Pythagoras theorem. And it is 13, we know that. Pythagorean triplets. Same three numbers were there. So some Pythagorean triplets will always come. You must remember them. जैसे 6 square plus 8 square is equal to 10 square. 6, 8 and 10. 5, 12 and 13. There are more such Pythagorean triplet. You can remember them. Easy हो जाता है उससे. ठीक है. कंस्ट्रक्शन याद रखना. That is important. Gauri, Atharva, Shikha, please keep your camera on. Okay, no problem. Okay, one more such question based on the application. Not application, but you can say based on the Pythagorean formula. Have you ever seen a rhombus? Rhombus की properties पता है तुमको? All sides are equal. Very good. Diagonals bisect each other at 90 degrees. That is the most important. They intersect, sorry, they bisect each other at right angles. So they are perpendicular to each other. So suppose this is a rhombus. इसकी side है 10 centimeter. A, B, C, D. All sides are equal to 10 centimeters. Okay. One of the diagonal is 12 centimeter long. Find the length of the second diagonal. Very easy. So what you do is you draw both the diagonals first. And you know that they are intersecting at point O, which is 90 degree. Acha, one of the diagonal is 12 centimeter. Let's say, let AC be equal to 12 centimeter. So can you tell me how much will be OC? OC will be equal to half of AC, which is 6 centimeter. What is the reason? Diagonals bisect
each other. ठीक है, so ये हो जाएगा 6. Now somehow if I find OD, I can easily get OB. Okay, now before you begin, you should mention that angle COD is equal to 90 degree. Angle COD is 90 degree. Why angle COD is 90 degree? Diagonal bisect each other at right angles. ठीक है, so in triangle COD, CD square is equal to OC square plus OD square by Pythagoras theorem. Correct? By Pythagoras theorem. CD square is 10 square, which is equal to OC square, which is 6 square plus OD square. एक बार OD मिल गया, OD को डबल करोगे तो BD मिल जाएगा. That is the whole thing. Please find it. Yeah, you have to find BD, not OD. OD is not your, OD is just a preliminary thing. OD is how much? 8. So BD will be 16. OD 8 and BD 16. Statement लिखना जरूरी है. Unit is centimeter, okay? Because they have given the units in the question, so you cannot say units. Done? इजी था, अब तक तो सब कुछ इजी चल रहा है. पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशंस देख रहे हैं हम लोग. अब कुछ मजेदार क्वेश्चंस शुरू हो चुके हैं. Now see, this is, I think, a very good example of the application of Pythagoras theorem, where you actually have to use some geometry, not only calculation. There is no calculation in this. Okay? First, let's draw the figure. Triangle ABC is right angled at B. A, B, C, right angled at B. And D is midpoint of BC. Okay. Over here there is D, which is midpoint of BC. Prove that AC square is equal to 4AD square minus 3AB square. Okay. So I will join AD. Since I have AD square in my statement to be proved, I need to draw the line AD. Na? AD draw नहीं करेंगे तो prove कैसे करेंगे? So I'll just draw AD. तुम्हें देख के किसी किसी को लग रहा होगा कि क्या प्रूव करने बोल रहे हैं. दिमाग तो ठीक है. क्या है ये? What is this? And how will get there? So there are techniques. टेक्निक यूज करोगे कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू आस्क यू इज, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स डू यू सी इन दिस फिगर? Two right angles, triangles. Which triangles? Can you please tell me? Triangle ABD and triangle ABC. Am I correct? Okay.
सो सबसे पहली टेक्निक क्या बताई मैंने, जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई कर दिए, अब उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। सो एबीडी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मुझे मिलेगा ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, राइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यू गेटिंग देयर? अच्छा, ए बी सी में what will get AC square is equal to AB square plus BC square. Okay. Now, just look at this statement which is to be proved. मेरे स्टेटमेंट में AC है, AD है और AB है, ठीक है। मेरे स्टेटमेंट में AC है, AD है और AB है। तो मैं क्या करूंगा पता है, ये जो AC स्क्वायर का स्टेटमेंट है ना मेरे पास, इसी से मैं शुरुआत करूंगा। आई एम गोइंग टू बिगिन फ्रॉम हियर बिकॉज सी देयर इज ऑन LHS देयर इज AC स्क्वायर, डू यू सी दैट? हियर आल्सो आई हैव AC स्क्वायर ऑलरेडी रेडी मेड। मुझे सिर्फ क्या करना है कि ये AB स्क्वायर और ये BC स्क्वायर, इसको कुछ अगर मैं चेंज करके लिख सकता हूं और मैं कैसे भी इसको कन्वर्ट करके 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर बना सकता हूं, तो वो कोशिश करनी है। ठीक है, कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो ए बी स्क्वायर मुझे चाहिए। आई वॉन्ट ए बी स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड, सो आई कैनॉट लेट गो ऑफ इट। ये ए बी स्क्वायर तो आई कैनॉट लेट गो ऑफ इट, बट आई डू नॉट वॉन्ट बी सी स्क्वायर। यू सी दैट इट इज अनवॉन्टेड। बी सी स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है, तो ये बी सी स्क्वायर के जगह पे कुछ और अगर मैं लिख पाता तो अच्छा होता। but I can do that. I can do a little bit of you can say manipulation in equation 1 and I can get the value of BC square. Just see how I'm going to do it for you. प्लीज यहाँ पे देखो, बाद में लिख सकते हो, तुम आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर तुमने कुछ भी मिस कर दिया समझना तो फिर लिखने का कोई फायदा नहीं, तो समझ लो अच्छे से, ठीक है। सो ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस ये जो बी डी है ना, बी डी, डू यू सी बी डी ओवर हियर? कैन आई राइट बी डी एज बी सी बाई 2 द होल स्क्वायर? क्योंकि बी डी इज हाफ ऑफ बी सी ना, बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज हाफ ऑफ बी सी, सो बी सी बाई 2 द होल स्क्वायर। सो कैन आई राइट इट एज ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4? कैन आई राइट इट लाइक दिस? अच्छा, can I take LCM? So it will become AD square is equal to 4AB square, 4AB square plus BC square the whole upon 4. Do you agree with this? अच्छा, 4 को ये साइड ट्रांसफर करते हैं, 4AD square is equal to 4AB square plus BC square. All okay till now? अब देखो, BC square is equal to 4AD square minus 4AB square, ठीक है ना। BC square की वैल्यू मिल गई मुझे। यहाँ पे अनवांटेड कौन था? रेड सर्कल बनाया मैंने। BC स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है मुझे, उसको डाल दो वहां पे, ठीक है। तो उसको डाल देंगे यहाँ पे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर, 4AD square minus 4AB square. Okay, so AC square is equal to 4AD square minus 3AB square. क्या यही मुझे प्रूव करना था? यस, डन। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? I'll just zoom out a bit so all of you can see the whole thing. ट्राइंगल तो सबने ड्रॉ किया ही होगा।
Yes. I hope you understood the technique. पहले triangles identify करो, right angle triangle. Because why right angle? Because that is what is going to be useful. Pythagoras theorem कहाँ पे apply करेंगे? Then you make equation. And then you see कि मुझे क्या equal बनाना है. And then हेरा फेरी करके हो जाता है. Little tricky at times, but then it's doable. This is the last part of the chapter. We are going to end the chapter today. Mrinmay, why you didn't come? Mama, sir, I'm at my native place. Oh. I came here on Saturday. Oh yeah, I remember that 15th August wala poem or whatever song. Anshul, Niharika, Gitika, Shikha, Soham, please on your cams. You're not visible. अंशुल कभी आ रहा है यार? आजा यार. I'm missing you man. हाँ बोल रही थी उर्मी मैम मेरे को. डिसीजन लिया कि नहीं? क्या है तेरा डिसीजन? फाइनल डिसीजन, फाइनल वर्डिक्ट, आपकी अदालत. शिखा प्लीज ऑन योर कैम. मैं हर बार तेरे से पूछता रहूंगा ये. अंशुल डिसीजन ले जल्दी. अंशुल मैं बिल्कुल आई प्रॉमिस तेरे को नहीं डांटूंगा यार. तू क्यों ऐसा कर रहा है? मैं विलन हूं क्या? मैं यस सर. तूने मुझे विलन बना दिया यार. मैं नहीं हूं यार विलन. अंशुल, अंशुल तू ब्रो है मेरा. अंशुल तू आ जा यार, तेरे को मिलना है यार. अच्छा कोई बात, कोई बात. यू आर गेटिंग नर्वस. कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले रीड कर लेते हैं. द परपेंडिकुलर AD on the base BC of triangle ABC intersects BC at D so that DB is equal to 3 times CD. Prove that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. Look at your faces. Guys, don't worry, this is very easy. बहुत easy है, हो जाएगा. बट ओनली थिंग इज यू हैव टू कीप एट इट. तुम बीच में से अगर हार मान लोगे ना तो नहीं हो पाएगा. हो जाएगा, डोंट वरी. पहले लिखो, डायग्राम बनाओ, गिवन और टू प्रूव लिखो. एवरीवन, डायग्राम गिवन टू प्रूव. हाँ बोलो बोलो बोलो. लास्ट वाली क्लास में मेरा कभी क्वेश्चन था तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए.
ऑनलाइन थी या ऑफलाइन? हाँ हाँ, yes, yes. Minmay, you are free to give any reactions if you want. Looking at the question, we will judge the difficulty level of the question on the basis of your reaction. The louder you shout, shriek, or exclaim, the greater the difficulty of the question. You can also do it in your native language, mother tongue. Ticha Maila! I accept it, no problem. I don't speak like that. Sorry? I don't speak like that. Hello? Yeah. Hmm. Hmm. No, not that. The first one. And anything else? Like no, it was there. Some orange thing, the Italian mafia type. Yeah. Yeah. Okay. Yardley, please take that one. Bye. Kya Mrinmay, what did you say? Sir, I said that I don't speak like that. You don't speak like that, matlab, what do you mean? That is a wrong thing to speak? That's an expression, yeah. No, that's not a wrong thing to Then, speak. That's not a wrong thing to speak. then But still, I don't use those words. those words, what do you mean by those words? This is very discriminatory, what you are saying. So, why this is discriminatory? Yeah, no words are wrong words, okay? Everybody has their own set of words which they can use anytime. I just said that I don't speak like that. It's okay if anyone does. No, you have to speak. अच्छा छोड़ दो, अभी वो आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो तुम. I don't argue, sir. ये just by saying I don't argue, you are arguing. ठीक है, so let it be. It's okay. What is your expression on this question? Like, how do you? No, verbal expression. छोड़ दे, वो अपने आप नेचुरली आएगा, आगे आएगा, एक दो क्वेश्चन है. ओके, यू आर स्केयर्ड, ओके, चलो देख लेंगे. ओके. सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क एनी वन ऑफ यू, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? Which triangles are we selecting? Which ones? Which ones? Triangle ABC, ADC, and triangle ADB. Correct? Agree? ठीक है. Let me just zoom in a bit. Okay, so these two are the triangles, ADC and ADB. If I look at triangle ADC, I get in triangle ADC, angle ADC is equal to 90 degree. So therefore I get AC square is equal to AD square plus DC square. Do you agree? And in triangle ADB, angle ADB is equal to 90 degree. So I get AB square
इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, सॉरी डी बी स्क्वायर, डी बी स्क्वायर, मेरी गलती हो गई यहाँ, डी बी, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। एग्री? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये जो मुझे प्रूफ करना है ना, उसको ध्यान से देखो। ए बी है, ए सी है, बी सी, ए बी है, ए सी और बी सी है, कहीं भी ए डी है नहीं, कहीं भी सी डी या डी बी है नहीं। सो ये सबको एलिमिनेट करना है मुझे, ये दो इक्वेशन, इन दोनों को साथ में भी लाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, ये फ्रॉम द इक्वेशन 1, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1? AC square minus DC square. Do you agree? AC square minus DC square. Yeah. From the equation 2, can you tell me what is the value of AD square again? क्योंकि both equation has AD square. AB square minus DB square. ये फर्स्ट स्टेप है। मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को देखा और दोनों इक्वेशन में जो अनवांटेड चीज थी, अनवांटेड चीज क्या थी? AD square. Because in my proof I don't have AD square, so I want to eliminate that. तो मैंने AD square के टर्म्स में इक्वेशन बना दिया, फॉर्मूला बना दिया। अब ये दोनों इक्वेशन में AD square है, तो क्या मैं उनको इक्वेट कर सकता हूँ? Can I equate them? So what will I get if I equate them? If I equate them, I will get AC square minus DC square is equal to AB square minus DB square. राइट? अच्छा, अभी देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो हेरा फेरी करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। सी दिस, कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज AB square is equal to AC square plus DB square minus DC square? Can I write this? AC square is AB square is equal to AC square प्लस DB स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। मैंने इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। मैंने क्या किया है पता है? ये AB स्क्वायर है ना, AB स्क्वायर, इसको मैंने लेफ्ट साइड पे अकेला छोड़ दिया और DB स्क्वायर को वो साइड शिफ्ट कर दिया है AC स्क्वायर के पास, तो वो प्लस DB स्क्वायर बन गया और माइनस DC स्क्वायर एज इट इज रहा है वहां। डू यू एग्री विद दिस? यू नो व्हाई डिड आई डू इट? सी व्हाट आई हैव टू प्रूव। Whatever I have to prove has AB square on the left hand side. So मैंने AB square already left hand side में create कर दिया है। Right hand side में it has got AC square. मेरे पास भी AC square है, but along with that I don't have BC square and I have some unwanted thing, DB square, DC square. Now just see the next thing, what I'm going to do. In the question they have said that DB is equal to 3CD. DB is equal to 3CD. DB is equal to 3CD. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो DB है ना, DB, इसको मैं CD के फॉर्म में लिखूंगा। कैन आई डू दैट? कैन आई डू दैट? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये जो DB है, DB की वैल्यू मुझे पता है 3CD, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3CD the whole square minus DC square or CD square, whatever you want to say. So AB square is equal to AC square plus 9 DC square minus DC square. So AB square is equal to AC square plus 8 DC square. What have I got? 8 DC square. और मुझे एक्चुअली क्या चाहिए? BC स्क्वायर चाहिए। तो somehow I want to express DC as BC. DC को मुझे BC के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, एंड दिस इज द टफेस्ट पार्ट. इट्स नॉट टफ, इट इज ट्रिकी. उसकी ट्रिक्स अगर तुम सीख लोगे ना, जितना जल्दी सीखोगे उतना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. Are you ready to learn how I have done that?
यहां तक समझ में आया सबको, या यहां तक नहीं समझ में आया? सिर्फ एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर समझ में आ गया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कोई इंडिकेशन नहीं है, कुछ लोग कैम ऑफ कर देते हैं बीच में। हाउ डू आई नो दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस? ओके, ओके, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नाउ सी दिस, और ये रफ है, ठीक है, सो ये फेयर में नहीं लिखना, फेयर में नहीं लिखना। dB इज इक्वल टू 3CD, ये कहाँ से मिला मुझे? ये गिवन है, dB इज इक्वल टू 3CD। इफ यू सी इट्स गिवन, dB इज इक्वल टू 3CD। CD प्लस dB इज इक्वल टू BC, ये कहाँ से मिला मुझे? फिगर में CD प्लस dB इज इक्वल टू BC। एग्री? ये दोनों स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुमको? ओके, अब ध्यान से देखो, CD प्लस ये जो dB है ना, dB उसकी जगह मैं डाल दूंगा 3CD इज इक्वल टू BC। सो BC इज इक्वल टू 4CD, सो CD इज इक्वल टू BC बाई 4। ये रिलेशनशिप है CD और BC, जो मुझे क्वेश्चन से मिल गई आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा। बिफोर आई सॉल्व द क्वेश्चन आई हैव टू शो दिस दैट हाउ डिड आई गेट इट, ठीक है? सो इसको हम लोग अलग से यहाँ पे रख देते हैं, एंड देन वी सॉल्व इट फर्दर। CD इज इक्वल टू BC बाय 4। अब जो मेरा इक्वेशन है ना, उसमें CD या DC की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? BC बाय 4। ओके, सो AB स्क्वायर, आई एम सॉरी फॉर दिस कलर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स DC की जगह क्या लिखूंगा मैं? BC बाय 4 द होल स्क्वायर, कैन आई? ओके, AB square is equal to AC square plus 8 times BC square by 16. Can I write that? Acha, 8 ones are 8 twos are. Can I write that? Can I write that? Acha, so AB square is equal to AC square plus BC square by 2. Can I take LCM? So AB square is equal to 2AC square plus BC square the whole upon 2. Can I take 2 other side? So 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. यही प्रूव करना है ना? हो गया। है ट्रिकी, मैं मानता हूँ ये ट्रिकी है, मैं इसलिए पहले से बोल रहा हूँ द ट्राइंगल इज नॉट अ सिंपल चैप्टर, इट हैज गॉट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। तुम बीपीटी से, सिमिलैरिटी से, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बीच में तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी, एंड देन यू एंड अप विद दिस पाइथागोरस which has another level of questions with altogether new techniques. कुछ लेना देना नहीं है similarity से, anything to do with similarity over here? Nothing. So that's why I consider this chapter to be like the most lengthy, most difficult, most tricky chapter of your syllabus, and the only chapter in geometry which is difficult. There is one more geometrical chapter in your syllabus, that is circles, but बहुत छोटा सा chapter है, 2-3 थियरम है, एक ही थियरम है जिसके 3 पार्ट है और उसके ऊपर क्वेश्चन है, एक दिन में हो जाएगा। दिस टेक्स अराउंड 2-3 वीक्स, गुड 2-3 वीक्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट मी जस्ट जूम आउट। नोट इट डाउन, आराम से लिख लो, समझ लो एक एक स्टेप, कुछ भी डाउट है तो पूछो मेरे से, और जो वो रेड में लिखा है वो प्लीज लिखना तुम अलग से ब्रैकेट में, कैसे मैंने रिप्लेस किया DC को BC बाई 4 से, उसका रीजन है। It's visible to you, right? If it is not, I'll zoom in.
So you just have to let me know that ये दिखाओ फिर से दिखाऊंगा. So before the lockdown, when I did not have all these resources online, ये सारी चीज़ मैं क्लास में पढ़ाता था. मतलब पहले मुझे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ानी पड़ती थी, फिर एक एक चीज़, कुछ भी वीडियो नहीं थे मेरे पास, कुछ नहीं, और सिलेबस खत्म होता ही नहीं था कभी किसी का. It was very difficult. Just imagine. I can't imagine to be working like that again. मुझे आदत पड़ गई अब टेक्नोलॉजी. पहले तो रूल था ना कि मोबाइल नॉट अलाउड इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन बैंग. अब ऐसा नहीं है. अब मोबाइल लाओ, टैब लाओ, सोशल मीडिया पे रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आउट. और जिन बच्चों को पढ़ना है वो कैसे भी पढ़ते हैं. They play games, they play sports, they are on social media, they have a relationship. I don't care. पढ़ाई सब जगह होती है, ठीक है. जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, है कि नहीं नितिश? क्या हो गया भाई? Why is this happening with you, man? नितिश, तेरी कंप्लेन सुन रहा हूँ यार मैं. ये नहीं होना चाहिए नितिश. उर्मी मैम ने बात की थी ना तेरे पापा से, कुछ तो तूने क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था. That's not right, man. We really respect your father, and I have a very good rapport with him, and I don't want to see him disappointed in us specifically. तेरी तो बात बाद में, तू तो उनका बेटा है, लेकिन ऐसा मत कर यार तू, जिससे हमारा नाम खराब हो तेरे पेरेंट्स की नज़रों में, या फिर क्योंकि दे विल लव यू फॉर एवर, बट दे विल थिंक दैट यार ये बैन एंट्री में आके गलती हो गई. ऐसा नहीं होना चाहिए. You know how much hard work we are putting in, and with that, if that kind of idea is created in some parent's mind, then I will be hurt. It hurts me. So don't do things which are not supposed to be done. Pay attention. पढ़ाई पे ध्यान दो. ठीक है, बाकी सारी चीजें होती रहेगी, मस्ती. नाइन्थ में जब ज्वाइन की तो क्लास से कंफ्यूज नहीं हो रहा था. हम बोला पापा मुझे नहीं आता, मैं कुछ भी करूं, मैं जब बैठा ना मुझे नहीं निकालती. And now I'm used to it. वो टेबल बना के टाइम टेबल कैसे कैसे कंप्लीट करना है तो उसके अकॉर्डिंग. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. मैं अगर ऐड बनाऊंगा तो तेरे को लूंगा. तू बोल देना ऐसे. अंशुल चारुल कुछ बोल रही है. बट देयर आर सो मेनी लाइक यू. नाइन्थ में तुम लोग के साथ भी थे 2 लड़कियां, याद है? मतलब आई वेंट आउट ऑफ माई वे टू हेल्प देम, आउट ऑफ माई वे टू हेल्प देम इन नीड, एंड दे जस्ट, जैसे चाय में से मक्खी निकालते ना, वैसे मेरे को निकाल के ऐसा फेंक दिया. आई फील दैट, यू नो वाई आई फील, बिकॉज मैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट जैसे नहीं हूँ जो लोग टीचर रख देते हैं भाड़े पे, पढ़ाओ. मैं खुद पढ़ाता हूँ. मुझे पता है मेरे बैक में क्या पेन हो रहा है या मेरी आंखों में क्या दर्द है, मुझे पता है, बिकॉज आई पुट माई स्वेट एंड ब्लड. और फिर कोई ऐसा करता है तो देन आई फील रियली फ्रस्ट्रेटेड. बट लेटली I have managed my anger in a positive direction, because I have learned to see what I have rather than what I don't have. So I'm very happy that you stuck with me, and you chose me over the others, and I'm definitely sure that it will fetch you some good results and some good experiences. Not only results, they matter. Results तो आएंगे ही, बट उसके उसके अलावा भी अच्छी बातें होनी चाहिए तुम्हारे पास याद करने के लिए.
Yes. Sir, AB square is equal to AB square plus AB square minus AC square. Oh yes. So ये सिर्फ हेरा फेरी की है मैंने, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. तुम इस स्टेप की बात कर रही हो, राइट? दिस इज द स्टेप यू आर टॉकिंग अबाउट. जस्ट इमेजिन ए बी स्क्वायर टू बी हियर ओनली. ए बी स्क्वायर को इधर ही इमेजिन करो, डी बी को वो साइड लेके जाओ, तो वो साइड क्या क्या आएगा? जस्ट बता मेरे, इमेजिन करके. AC square plus DB square minus AC. तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ, सिर्फ मैंने उसको ये साइड लिखा है और ए बी स्क्वायर को ये साइड लिखा है. आई डिड दैट इन वन स्टेप सो दैट आई डोंट हैव टू राइट इट अगेन. और क्यों ऐसा लिखा है ए बी स्क्वायर को लेफ्ट में? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे चाहिए था ए बी स्क्वायर लेफ्ट में. क्वेश्चन में 2ab स्क्वायर इज ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, ऑल ओके, कंफर्टेबल विद दिस? अभी समझ में आया क्या करना है तुम्हें? सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो. लेट्स सी. आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि वो तुम कर पाओगे कि नहीं, बट लेट्स सी, देख सकते. वाओ. Sir, क्या है ये? ये ये मैं तुम्हें सपने में भी नहीं दे सकता. आई एम सॉरी, बट ये मैं करूंगा. डोंट. हाँ इजी है. नहीं लेकिन वही दिखने वाली बात है ना यार, हम लोग दिखने पे ही तो जाते हैं. excuse me, sir. यस, यू आर एक्सक्यूज्ड. आई नो वन पर्सन. Sir, I got disconnected. Don't tell me to repeat. Don't tell me to repeat. That's the last thing I'm going to do in Pythagoras theorem. What? I wrote that question which we did at last, but then what happened? I What did happened? the second one. What happened? मतलब what do you mean by what happened? ये कोई मूवी चल रही है क्या? इसके बाद क्या हुआ था रे? Sir, I'm talking about what happened to my internet, not about the chat. हाँ तो what happened? Tell me now what you want. Sir, what we did in last 3 to 4 minutes? We just talked. पंचायत की हमने. Anything related to triangles? No, human emotions. Okay, sir. Okay ना? Okay, I don't care. It was just like that. Okay, I don't care. Sir, I do care, but now I will say, I will tell you to repeat, then you'll be like, oh my. So I'm like, okay, no problem. अच्छा, ओके, वेरी क्लेवर. इनमें से बहस नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकता हूँ. Hey, सॉरी. I was laughing. ये लाफिंग था या इमोजी फेंका तूने मेरे पे? हे का. Sir, laughing. अच्छा. Laughing. Sir. Shall we go ahead with this because we'll never get through it. Okay. मेरे को H नहीं है. H कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन है या तो X है तो H भी रहेगा, बट H कहीं भी प्रूफ में नहीं है. फॉर श्योर H कहीं भी प्रूफ में नहीं. Oh, look at this. D is the midpoint of BC. In this figure, D is the midpoint of BC. ठीक है. And AE is perpendicular to BC, वो भी दिया है. Show that B square is equal to P square plus AX plus A square by 4. ऐसे करके 3 इक्वेशन दिए. मैं रीड करूंगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन. जब तक मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करता मुझे पता ही नहीं चलेगा ये क्या है. पहले तो what I would like to do is, see, this is not part of the answer, but this is going to help me get the answer. Somehow this is going to help me. I have a feeling, so I'm going to do that. Please take a note. पहले तो ये डायग्राम बनाओ सब लोग. Yes. X is ED, yeah. X is ED. उसको भी हम लोग करते हैं, थोड़ा सा डीमिस्टिफाई है क्या ये चीज.
यू हैव टाइम ना, आज मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ क्या खत्म कर रहे हो? लेक्चर. हाँ हाँ मतलब चैप्टर It's okay, right? If I take some more time, maybe half an hour or 40 minutes. You want me to message in the group so your parents come to know? Okay. ड्रॉ किया, फिगर ड्रॉ किया. अच्छा. So all of you notice that BC is equal to A, है कि नहीं? अच्छा. BD is equal to DC is equal to A by 2. Do you notice this? क्यों क्यों है ये? Why? D is midpoint. D is midpoint. D is midpoint of BC. That's why BD is equal to DC. पूरा BC A है तो BD और DC BC के हाफ है. That means A के हाफ है, इसलिए A by 2. So we have X also. अच्छा, in terms of A and X, can we find BE? BE क्या होगा? BE will be BD minus ED. Do you agree? What is BD? A by 2 minus X, that is A minus 2X by 2. Do you agree with this? ये हमें कहाँ आ सकता है आगे? हेलो. क्या यार, मेरा क्लास चल रहा है अभी. ओके, लेट्स स्टार्ट. आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ भी सोच विचार के फायदा नहीं है. शुरू करते हैं इसको. सबसे पहले हमें प्रूव करना है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर बाई 4. कैन यू टेल मी द ट्राइंगल, द राइट एंगल ट्राइंगल इन विच देर इज बी? AEC. Okay, AEC. And is there P in that triangle? No. So ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. कोई दूसरा ट्राइंगल है जिसमें P है? AED. So there are two triangles in which there is B and then there is P. A is associated with both the triangles. X is also associated with both the triangles. ठीक है. So I will take two triangles AED and AEC. Okay. Let me zoom out. Okay, so the first triangle I'm going to take is triangle AED. Triangle AED is equal in triangle AED by Pythagoras theorem. Since angle AED is 90, I can say that P square, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, हाइपोटेनियस AD है ना, which is equal to P square. तुमने डायग्राम बनाया है ना, तुम अपने डायग्राम में देख सकते हो if it's not visible over here. So P square is equal to x square plus h square. P square is equal to x square plus h square. You agree with this?
So can I write from here, can I write that h square is equal to p square minus x square, है ना? सिद्धि, तेरे को प्रॉब्लम होता है ना ये करने में? तेरे को हुआ प्रॉब्लम अभी बता. Did you understand what I wrote in triangle AED? Why did I write this? Pythagoras theorem. Why did I write this? I made h square the subject of the formula. मतलब h square को मैंने अलग कर दिया और उसकी वैल्यू निकाल दी. So if you see h square remains there, x square goes to the other side, it becomes p square minus x square, and that is what I have written. क्लियर ना? कोई डाउट है तो पूछना बिंदास. तो h स्क्वायर की वैल्यू मैंने ट्राइंगल AED से निकाली इन टर्म्स ऑफ p एंड x. नाउ आई एम गोइंग टू टेक ट्राइंगल AEC. In triangle AEC, AC square, which is B square, is equal to AE square, which is H square, plus EC square. Can anyone tell me what is EC square? You are correct. EC is ED plus DC. ED is X, DC we already know as A by 2. So it is X plus A by 2 the whole square. अब इसको छेड़खानी मत करना कुछ भी, इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी, और इससे भी h स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो. कैन यू टेल मी? सिद्धि विल टेल मी. सिद्धि, हाउ मच इज h स्क्वायर? नो 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 नो. वेरी गुड. सो ये दोनों इक्वेशंस को देखो जरा ध्यान से. व्हाट हैव यू गॉट? h स्क्वायर का वैल्यू. और ये जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी h स्क्वायर है? कहीं भी h स्क्वायर है? नहीं है. मतलब दोनों को इक्वेट करके h स्क्वायर को एलिमिनेट कर सकते हैं हम. इफ यू इक्वेट दीज टू हाईलाइटेड इक्वेशंस, h स्क्वायर गायब हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों में से h स्क्वायर की वैल्यू को साथ में लेके आएंगे. सो हाउ टू डू दैट? p square minus x square is equal to b square minus x plus a by 2 the whole square. सही किया मैंने? मेरे पास कौन से वेरिएबल है? p है, x है, b है, a है. सही है. और मुझे प्रूव करना है उसमें क्या क्या है. जो प्रूव करना है फर्स्ट, डिड यू राइट दैट? व्हाट आई नीड टू प्रूव? b, p, a और x है ना? x स्क्वायर को छोड़ के, ओके वो तो कट जाएगा, बट x तो है ना हमारे पास. सो आई थिंक अगर इसको मैं रीअरेंज कर लूं तो मुझे मिल जाएगा जो मुझे प्रूव करना है. जो मुझे प्रूव करना है उसमें LHS में क्या है? b स्क्वायर. ओके ठीक है. या with x plus a by 2 the whole square. Yeah, I will explain you, but for explaining that I need to zoom in over here. Just look carefully. Okay, so do you see triangle AEC? Okay, in triangle AEC, can you tell me what is DC? We have written that it is a by 2. DC is a by 2, BD is a by 2 because D is midpoint of BC, right? So can you tell, acha, this is X. Can you tell me how much will be EC? X plus a by 2. You have to take the whole thing, na? So you have to add them. So that's why EC is X plus a by 2. Why is EC useful to us? Because if you apply Pythagoras theorem in triangle AEC, you will get X plus a by 2. ठीक है? Okay, let's simplify this. We are ready to do that. हाँ, b स्क्वायर चाहिए, हो जाएगा, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा. इसको पहले ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं. p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, सॉरी, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू a by 2
प्लस ए स्क्वायर बाय 4 ब्रैकेट क्लोज। मैंने क्या अप्लाई किया? दिस इज विच आइडेंटिटी? ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? ये 2 और ये 2 कट जाएगा, कटेगा ये दोनों। ओके, सो पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर बाय 4। कैन आई राइट इट लाइक दिस? अब एक चीज मैं कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों साइड से माइनस एक्स स्क्वायर, सेम टर्म से दोनों साइड पे तो वो कटेंगे ना। अच्छा, अब मैं जो चीज बोल रहा हूं सिद्धि, तुम्हें तकलीफ होने वाली है इसमें? नहीं, तुम सीख गई हो, बट फिर भी बी केयरफुल। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट बी स्क्वायर टू द लेफ्ट हैंड साइड। सी व्हाट आई एम डूइंग, look carefully. P square plus ax plus a square by 4 is equal to b square. कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ क्या करना था? यही मिल गया, हेंस प्रूफ। Online everyone, are you following this, how we got this? I could have, no such reason, I could have done that. LCM ले सकता था मैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है। LCM नहीं लेने के लिए कोई रीजन नहीं है ऐसा। अगर मैं ले भी लेता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता। अच्छा था ना क्वेश्चन? इट्स अ गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। एक गुड न्यूज है मेरे पास है, बाकी के 2 क्वेश्चन मैं नहीं करना है, वो तुम्हें करना। वेरी गुड यार, आई रियली मीन्स आई एम वेरी ग्लैड दैट तुमने ये सस्पेंस खोल दिया। बी स्क्वायर की वैल्यू हमने प्रूव कर दी, सी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें मिलेगी अब, ये सेम टेक्निक से। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को ऐड करोगे तो तुम्हें लास्ट आंसर मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू अप्लाई एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू ऐड देम। कैन यू प्लीज नोट इट डाउन कि ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? नोट कर लो। सेकंड एंड थर्ड टू बी डन बाय यू। Yeah, sure. Yeah, exactly. First we selected triangle AED and AEC. Now you will select triangle AED, you will select, and ABE. AED you will select in both the cases. You are correct. Because P we want, no? We want P in both the cases. You want to see the first part, right? So I wrote those things over there. Maybe they are useful or not. Kanishka, are you understanding? Sure.
How's your father? Well. Okay, done, everyone? Sure. I don't know. Wait. इतना एक्साइट मत हो जाओ. MCQs. But see, you don't have to solve them. The thing is, you don't have to solve them. I'm just showing you these MCQs because I want you to see what kind of questions are to be asked as MCQs. तुम्हें उसका भी एक idea होना चाहिए. So I'm going to solve these MCQs orally with you using Pythagoras, but orally. है ना? तो तुम्हें भी एक्सपीरियंस होगा ओरली करना कैसे है. इतना सब लिखने जाओगे तो एक एमसीक्यू के पीछे तुम्हारा आधा घंटा चला जाएगा. सो वो तो नहीं करना है. तो कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के पीछे. करते हैं 2-3 क्वेश्चन करते हैं. वी आर डन विद द चैप्टर. ट्राइंगल्स इज ओवर. ठीक है. द ओनली थिंग इज वी हैव टू do some different kinds of questions also in MCQs. एक equilateral triangle है. Let us draw an equilateral triangle. Okay. Okay, so this is equilateral triangle ABC in which AD is perpendicular to BC. Perpendicular draw करता है. Then 2AB square is equal to 3AD square. या फिर मतलब इन चारों में से क्या क्या करेक्ट है. So basically if you see they are asking us about the relationship between AB and AD. Some relationship must be there between AB and AD. है कि नहीं. बहुत इजी है. हो जाएगा. रिलेशनशिप बन गई इसमें. देखो सर BD और CD is equal to half of AB. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. द फर्स्ट प्रॉपर्टी आप बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि इन एनी इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ यू ड्रॉप एन एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड इट इज ऑल्सो अ मीडियन. द एल्टीट्यूड इज अ मीडियन हियर. एल्टीट्यूड इज अ मीडियन का मतलब है कि जो परपेंडिकुलर है ना वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है. मतलब BD और DC इक्वल है. तो अगर AB A है, AC A है तो BC भी A होगा और BD और DC क्या होगा A/2. ठीक है. अब सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो. ADC है ADB ट्राइंगल में और AD निकाल लो. तो ये तो हम ओरली कर सकते हैं. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर. डू यू एग्री विद दिस. अच्छा AC स्क्वायर कितना है A स्क्वायर और DC स्क्वायर है A/2 द होल स्क्वायर. सो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4. तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दैट इज 3A स्क्वायर बाय 4. अच्छा 3A स्क्वायर बाय 4 कौन है. AD स्क्वायर. तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर. अच्छा व्हाट इज A. A इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल व्हिच इज AB. AB भी तो A ही है ना. सो 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर. कौन सा ऑप्शन हुआ. कितना टाइम लगा. 1 मिनट भी नहीं लगा. नॉट इवन अ मिनट. या आई स्क्रिबल्ड समथिंग. स्क्रिबलिंग तो करना ही पड़ेगा.
प्रॉपरली स्टेप वाइज कुछ नहीं लिखना है तुम्हें, उसकी फिक्र मत करो, ये एमसीक्यू है। स्क्रिबल तो कर सकते हो, उतना फ्रीडम है तुम्हारे पास, बट यू विल गेट द करेक्ट आंसर। यू अंडरस्टूड? दिखने में डिफिकल्ट है, बट जब तुम सॉल्व करते हो ना, वो इट इज सिंपल। विद इन अ मिनट यू शुड गेट द आंसर। अगर एमसीक्यू में याद रखो, अगर 1 मिनट में तुम्हारा आंसर नहीं निकल रहा है, यू आर लूजिंग द ऑन द अदर क्वेश्चंस विच आर इजी। तो या हमेशा याद रखो 1 मिनट के अंदर आंसर निकालो एमसीक्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये देखते हैं तुम में से कौन करता है। सेम क्वेश्चन है, पहले वाला ही फिगर है। सीडी कहां से आया? सीडी तो है ही नहीं। सीडी है क्या? हाँ है, सीडी है, सीडी है, सीडी है। You want me to get this figure down? I will do that. अरे यार नहीं आ सकता है, there is some trouble with it. I get so frustrated by this. नहीं, I cannot get it. सुनो ना, मैं इधर रफ में बना देता हूँ फटाफट तुम्हारे लिए। Come on guys, you start. मत रुको किसी के लिए भी, ठीक है? तुम्हें एडी और सीडी का रिलेशनशिप चाहिए। पहले तो एडी कितना है वो निकाल लेता हूँ। AD square is equal to 3A square by 4, ठीक है? Okay, so Kaushal is telling option number B, right Kaushal? Option number B, I'm sorry. Option number B, Kaushal बता रहा है option number B. कोई और कुछ बोलना चाहता है, कंफर्म करना चाहता है, चेंज करना चाहता है? It's up to you. We have already got this from the previous question, okay? We want a relationship between AD and CD. Option B. Okay. You are also saying option B. Okay. Take some more time, no problem. 5 मिनट ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहली बार कर रहे हो। मानस, what do you say, Manas? B. Sure? Okay. Did you scribble anything or orally? Okay, great. Always do that, always have that liberty. कि एक बार कुछ करके अगर आ जाता है, दिखता है तुम्हें proof. Not everything has to be done orally. Remember that. Not everything can be done orally. सी, यहां से यहां तक कैसे पहुंचना है ये मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। अब इससे आगे मुझे सी डी तक कैसे जाना है वो मैं बताता हूँ। सो ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ये जो ए है ना, ए मीन्स ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड ऑल्सो बी सी। सो ए की जगह पे मैं बी सी लिख सकता हूँ, बी सी स्क्वेयर लिख सकता हूँ, ए स्क्वेयर इज बी सी स्क्वेयर। ओके, नाउ सी ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ सी डी बाई 2, सॉरी 2CD। बी सी इज 2CD ना, 2CD इज बी सी, तो 2CD द होल स्क्वायर। कैन आई राइट बी सी की जगह 2CD? CD इज हाफ ऑफ बी सी ना, CD is half of BC. So AD square is equal to 3/4 times 4CD square. So AD is 3CD square. And the correct answer is B. Very good. समझा तुमको कैसे किया? वो जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, उससे सिर्फ 4 स्टेप आगे था ही। Don't note down. You need to practice this kind of questions more. I will give you the PDF. So खुद से भी तुम कर सकते हो वापस। और भी क्वेश्चंस दूंगा एमसीक्यू में जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे।
11th का सी, हाँ सही है, 11th का सी करेक्ट है। ये कौन सा है क्वेश्चन पता नहीं है। हाँ बी, बी 20th ही होगा ये, उसका बी है। डायग्राम नहीं दिया है, ये और एक चैलेंज है, डायग्राम नहीं देंगे उधर। ओके, एक ट्रायंगल पी क्यू है, और उस ट्रायंगल में, अरे राइट एंगल किधर है, ये तो दिया ही नहीं है इसमें, ऐसे कैसे? इफ एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी एस क्यू एस एंड आर एस इक्वल। ट्रायंगल में दो ट्रायंगल हैं जो राइट एंगल हैं, एक ट्रायंगल के बीच में ऑल्टीट्यूड इससे राइट एंगल। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है यार। नहीं सर, दो हाइपोटेनस ऐसे हैं जो बीच में। बट राइट एंगल कौन सा है, तो दिया ही नहीं है ना। अरे सर दिया नहीं है बट कोई भी ट्रायंगल बनाऊं मैं? हाँ चलो ठीक है, मिल जाए। अजीब लग रहा है मुझे, बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया। अब तुम बोल रहे हो कि ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब PQ पे S पॉइंट है। एक मिनट रुको ना, पी 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 क्यू पे एस पॉइंट है सच दैट पी एस इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू आर एस, मतलब ये वाला। तो select from a point to the opposite side which bisects the perpendicular. No, not in all the triangles. We don't know what the nature of triangle PQR is. So we can't say कि ये हमेशा altitude ही होगा. We can't say that. Can prove? How you can prove what you can prove? Which? Oh, I get it. Something I get. What you are saying? You say, then I will say what I know. हाँ सही है ना? Prove with triangle. Can I say? Yeah. अच्छा, see, yeah, that's, I know that. This is x and this is x. Do you agree? क्यों? क्योंकि एस क्यू इज इक्वल टू एस आर ना, हाँ तो ये दोनों इक्वल है ना, x प्लस एक्स एंड x, ओके। अच्छा, ये अगर दोनों x है तो ये क्या होगा? 180 minus 2x. 180 माइनस 2x। अच्छा, ये y ले लेते हैं इसको, और ये भी y है, तो ये क्या होगा? अच्छा, 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर। अच्छा, 180 180 कट करो दोनों साइड से, सो see this 180 is equal to 2x plus 2y. Do you agree? Do you agree? अच्छा, so x plus y is equal to 90 डिग्री। x plus y 90 है तो कौन सा एंगल 90 है? एंगल आर 90 है। ओह शिट, कहीं और ही निकला एंगल 90। x प्लस वाई 90 है गाइस, आर 90 है। इसको फिर से बनाते हैं क्या? ट्राइंगल को फिर से बनाते हैं हम लोग, राइट एंगल लेके बनाते हैं। सो दिस फिगर इज एक्चुअली लाइक दिस। वाओ, जस्ट सी दिस, मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया है वो लोग ने। सो यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये आर है जो 90 है, ये P होगा, ये Q होगा, और यहाँ पे P और Q के मिडल में S है, such that PS is equal to QS is equal to RS. Now it makes sense, everything makes sense, है ना? पहले हमको पता था कि हम लोग सिर्फ गैस कर रहे थे, ये है 90, ये 90। ये किया जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी x और y लिया, तब जाके हमको समझ में आया कि R 90 है, फिर नया फिगर बनाया। हाँ, तो आंसर अभी क्या होगा मुझे नहीं पता, तो वो लोग ने क्या क्या ऑप्शन दिए, पहले तो अभी सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। पी आर स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर, यस। बाकी सब तो ऐसे ही घुमाने के लिए दिया लगता है। यस,
Sorry, measure of the angle or measure of the side? You don't know anything about the angle. Measure of side, na? I'll tell you. I'll tell you why. I'll tell you why. मैं देख रहा हूँ बैठ रहा है प्रियांश, ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है, ठीक है? ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, आइसोसेलेस है। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी आइसोसेलेस है। ये दोनों एंगल इक्वल है x, ये दोनों एंगल इक्वल है y। कोई प्रॉब्लम है क्या तेरे को? In two different isosceles triangles, if the sides are equal, it is not necessarily important that the base angles will also be equal. दोनों इक्वल आइसोसेलेस है, दोनों की साइड्स इक्वल साइड्स 4 सेंटीमीटर है, दोनों के बेस एंगल इक्वल नहीं है। एक फ्लैट है, एक टॉल है, दोनों की साइड्स इक्वल साइड 4 सेंटीमीटर है, बेस एंगल देखो अलग अलग। डू यू अंडरस्टैंड क्यों मैंने x और y लिया? बेस सेम नहीं है, बेस एक में QR है और एक में PR है, बेस दोनों अलग अलग है, सिर्फ उनमें कॉमन साइड है, दैट डज नॉट मेक दोस टू एंगल्स इक्वल, ठीक है ना? सो आंसर अपना क्या आया? बट मुझे ये देखना है, अच्छा ये तो आंसर फटाक से आ गया और तुमने देख भी लिया। मैं तो सी एज अ स्टूडेंट आई वुड बी कंफ्यूज के यार, मैं एक चेक करता पहले, PR इंटू QR इज इक्वल टू RS स्क्वायर, PR into QR is equal to RS square. Is it possible? Is it even possible? Maybe it is possible. Who knows ना? Maybe it is possible. देखो मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, although I know that C is the correct answer, मैं इसमें क्या अप्लाई कर रहा हूँ ये तुम देखो, PR upon RS is equal to RS upon QR. PRS, क्या PRS एक ट्राइंगल है? Do you remember this technique? Yes, yes. और QRS कोई ट्राइंगल है क्या? ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है? हो सकते हैं ना? हाँ, ये तभी सिमिलर होंगे जब ये एंगल 90 होगा, बट वी डोंट नो दैट दैट इज 90, सो दिस इज नॉट ट्रू। अगर ये 90 होते दोनों एंगल तो ये ट्रू हो सकता था। तो मैं ये भी सब सोच रहा हूँ, तुमने डायरेक्टली आंसर देख लिया, बट मेरा ध्यान उधर भी जा रहा है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, मैं बाकी के बारे में नहीं सोचा। पॉसिबल हो जाता है, QS स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर एंड PS स्क्वायर प्लस, मतलब सब इक्वल हो जाता अगर वो 90 होता तो। C इज द करेक्ट आंसर। व्हाट अ क्वेश्चन यार, व्हाट अ क्वेश्चन, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन था ये, वेरी नाइस क्वेश्चन। खत्म, सब कर दिया हमने, वी डिड एवरीथिंग। हाउ डू यू फील? फिनिश विद ट्राइंगल्स? ज्यादा रिलैक्स मत हो जाओ, कल ट्रिग्नोमेट्री, कल का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री और कल का लंबा लेक्चर होने वाला। वी आर ऑन आइडेंटिटी। इनफैक्ट हमने कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे ये तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड स्पेसिफिक, वो वाले किए हैं हमने, बट कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आइडेंटिटी पे जाने वाले हैं। सो टुमारो, लिसन टुमारो वी आर गोइंग टू do trigonometric identities. It is going to be a long lecture. It is going to be a long lecture. Maybe 8 o'clock हो जाए, अगर फिजिकली आ रहे हो तो नाश्ता खा के आना, पेट भर के आना, ठीक है? बट कल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं खत्म करूंगा, वो खत्म होने नहीं वाला। मैंने बोला था शुरुआत में जब सिखाया था, कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं मास्टरी के लिए? 500 आइडेंटिटीज। यस, वो तो कल नहीं हो पाएंगे, लेकिन यू विल नो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व कैसे होती है, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है? नहीं, कल कुछ नहीं करेंगे, हाँ ये वीकेंड में करेंगे ना हम लोग,
वीकेंड में विल डू दैट. फिर हमारा भी आने प्रोबेबिलिटी और क्या बचा है? एनीथिंग एल्स? का ही बात। Wait. Let me